The horrifying Greater Noida dowry murder case, the Nikki Bhati dowry death case, which has taken a dramatic new turn. Just days after Nikki's in-laws were accused of burning her alive over dowry demands, a fresh allegation has now emerged, and this time against Nikki's own family. Her sister-in-law, Meenakshi, who is the estranged wife of Nikki's brother, Rohit Paila, claims that she too was harassed for dowry by Nikki's own family. Meenakshi has alleged that her family gave a Maruti Suzuki Ciaz car as dowry, but it was sold by the Pailas, calling it inauspicious. She says her in-laws then demanded a Scorpio SUV and cash. When her family refused, she was allegedly sent back to her parents' home. When confronted, Nikki's brother, Rohit, refused to comment, saying that these are mere allegations. Another relative defended the family, saying, and I quote, "Fights happen in every house. At least we did not burn the girl," unquote. Meanwhile, investigators are also re-examining Nikki's sister Kanchan, whose testimony forms the basis of this murder case against Nikki's husband and in-laws. Police are reviewing CCTV footage that appears to show Vipin, Nikki's husband, outside the house when the incident took place. Another video, believed to have been shot by Kanchan, captures a voice asking Nikki, "What have you done?" Investigators are verifying if that voice was Kanchan's. This raises serious questions about what really happened on the night of the 21st of August. Was Nikki set on fire by her husband, or does the truth lie in a web of domestic feuds and counter allegations? For now, what remains undeniable is that a 28-year-old woman, a mother, a sister, a daughter, lost her life in a blaze of cruelty. And India's dowry monster has once again claimed yet another victim. The Nikki Bhati dowry death case taking a dramatic new turn. Days after Nikki's in-laws were accused and arrested over their dowry demands, fresh allegations have now emerged, and this time it's against Nikki's own family. The estranged wife of Nikki's brother claiming that she too was harassed for dowry by Nikki's own family. The woman in question, Meenakshi, has alleged that her family gave Nikki's family a Maruti Suzuki Ciaz car as dowry. But then Nikki's family sold that car, calling it inauspicious, and in turn demanded a Scorpio SUV and some cash as well. And when Meenakshi's family refused, Nikki's family allegedly sent Meenakshi back to her parents' home. When confronted, Nikki's brother Rohit has not said anything. He's refused to comment, and he just said that these are mere allegations. There's no truth to it. See this even as the investigation is ongoing, and the investigators are re-examining Nikki's sister Kanchan's testimony. And bear in mind, that is the most crucial testimony in this case. It forms the fundamentals of the murder case against Nikki's husband and in-laws. Police are reviewing all evidence, including that CCTV footage which showed, or which appeared to show, Nikki's husband standing outside the house when the incident took place. More videos have now emerged. Another one, which is believed to have been shot by Kanchan, in which a voice can be heard asking Nikki, "What have you done?" We have my colleague Anshuman Yadav now joining us on the phone for more. Anshuman ji, बताइए,
अभी ये नए वीडियो जो हैं इसमें से ये निकल के आ रहा है कि शायद निक्की अपने आप सेल्फ इमोलेट कर दी गई। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं और एक के बाद एक नई कड़ियां सामने आ रही हैं, अब इसमें पता चल रहा है कि जो कंचना की बहन है, जो जिस वक्त वीडियो बना रही थी, उसमें उसने वीडियो बनाते समय खुद कहा था कि निक्की तूने ये क्या कर लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं निक्की ने खुद को आग लगाई थी और आग लगाने के बाद वो जीने से नीचे आई है। इसके साथ ही साथ एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें हस्बैंड वित्त और उसका बेटा घर के बाहर मौजूद हैं, जो कि मार्केट में एक लगे सीसीटीवी कैमरे में सामने दिख रहा है कि जिस वक्त वो घटना घटी थी उस वक्त निक्की अंदर घर में मौजूद थी और निक्की का जो हस्बैंड है विपिन भाटी और उसका बच्चा जो नीचे मार्केट में मौजूद थे, जब शोर शराबा हुआ है तब ये लोग अंदर भागे हैं। तो कहीं ना कहीं एक से एक बढ़कर चौंकाने वाली वीडियो सामने आ रही है, नई नई कहानी सामने आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर सामने आ रहा है। अब इसके अलावा एक और न्यूज़ 9 के पास एविडेंस है जिसमें निक्की की जो भाभी है उसने आरोप लगाया है कि मेरा जो मतलब राहुल है, जो निक्की का भाई है, उसने भी अपनी पत्नी को डॉरी के चक्कर में पिछले 9 साल से उसको छोड़ रखा है। निक्की की जो भाभी है मीनाक्षी, उसका आरोप है कि ये निक्की का जो भाई है राहुल, वो मेरे साथ मारपीट करता था, डॉरी को लेकर कहते हैं अक्सर झगड़ा होता था, उसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व होता था। निक्की और जो कि अब दुनिया में नहीं है, निक्की और कंचना और उसके मदर और फादर मिलकर उसके साथ मारपीट किया करते थे, ऐसा आरोप वो लगा रही है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक के बाद एक नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज महिला आयोग की टीम भी वहां पे मौके पर पहुंची है, घर पर पहुंची है और निक्की के फादर से मुलाकात करी है और उस महिला आयोग की सदस्य ने खुद कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कोई भी निर्दोष व्यक्ति फंसना नहीं चाहिए, अगर कोई दोषी है तो उसको उसकी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी अंशुमन जी, पुलिस जो है अभी हमें ये समझ में आ रहा है कि पुलिस सारे एविडेंस जो है और कंचन की जो टेस्टिमनी है उसको री एग्जामिन कर रही है पुलिस। उसके बारे में लेटेस्ट खबर क्या निकल रहे हैं? देखिए, अभी पुलिस चूंकि इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, उस पर अभी मीडिया के सामने ब्रीफ नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो इस वक्त गिरफ्तारी को लेकर दी है और इसके अलावा किस तरीके की वो जांच में चीजें सामने आ रही हैं, पुलिस अभी बाद में उसको हो सकता है ब्रीफ करे मीडिया के सामने, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं दोनों फैमिली के ऊपर डॉरी को लेकर एक दूसरी बेटियों के ऊपर दबाव बनाने का आरोप लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस अब इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन को मीडिया के सामने अभी फिलहाल ब्रीफ नहीं किया है, लेकिन अभी तक जो जांच सामने आई है, एविडेंस सामने आए हैं और जो फोर्टिस हॉस्पिटल से जो मेमो सामने आया था उसकी भी पुलिस जांच कर रही है कि आखिर सिलेंडर ब्लास्ट की कहानी हॉस्पिटल को किसने बताई थी, कि आखिर की सिलेंडर निक्की की जो घटना घटी है, निक्की को जो आग लगी है वो सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से हुई है, तो इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। Anshuman, they're getting us the latest on the horrific Noida dowry murder case. Let's now also listen to some reactions coming in. We have Nikki's sister speaking. Let's listen in. क्या नाम है आपका? मीनाक्षी भाटी। मीनाक्षी जी, क्या आपके साथ? मेरे को दहेज के लिए 9 साल हो गई, मुझे घर से बेघर कर रखा है मेरे ससुराल वालों ने। मुझसे दहेज मांगते हैं, वहाँ पर ले जाते तो मेरे साथ मारपीट करते थे, मुझे मारा करते थे, मेरे भैया पे गोली तक चलाई थी उन्होंने। आज अपनी बेटी को कैसे आज दूसरे बेटी को न्याय नहीं कर सकता, वो उसी के कैसे मांग रहा हो? हाँ जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो बाप अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है, वो दूसरे की बेटी जो पीहर में छोड़ रखी है, जो घर से बेघर कर रखी है, उसे भी इंसाफ दिला दो। पहले उसके लिए सोचो जो 9 साल से कर रखी है, तेरी तो आज हुई है, उस बेटी के लिए भी सोच लो।
मेरे सिर पे बाप नहीं है, भैया है मेरे से छोटे हैं, क्या स्थिति होगी मेरी। कंटिन्यू जो पिता हैं वो आपसे किस तरह की डिमांड करते थे दहेज की? डिमांड करते रहते थे वो, कभी 5 लाख रुपए लाओ, कभी 10 लाख रुपए लाओ अपने पापा से, कभी 2 लाख रुपए लेकर आओ। बाप आते तो उनके मुंह भरते रह गए। अब बाप नहीं है तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। जब मुझे लेके तो जाते थे वो 6-6 महीने के लिए, 2-2 साल के लिए छोड़ते थे, तो 6 महीने के लेके पापा के उससे लेके भी जाते थे जब उन्होंने कुछ मिल जावे। अब ऐसा भी सुनने में आया कि आपका अबॉर्शन हुआ कई बार। हाँ जी, मेरी सास ने करवाया था। मुझे ऐसी दवाई देती थी कि ये कुछ दवाई होती है देसी दवाई, जब बच्चे रहते हैं कि सह बदलने की दवाई होती है वो, कि लड़का हो जाएगा लड़की की। क्यों लड़की की अच्छी नहीं लगती? जो आज कह रहा है कि लड़की नहीं रहेंगी, दवाई कौन देता? हाँ, लड़की नहीं रहेंगी तो लड़का कहाँ से आएंगे? उनसे ये पूछो कि आज उस बेटी को भी आप सह बदल की दवाई क्यों देवे? हाँ, झूठ बोल के खिलाते, झूठ बोल के गलत दवाई खवाते थे मुझे। जिस आपने शादी में कितना पैसा खर्च किया था? ये 35-40 लाख के करीब खर्च हो गया था। शादी के समय क्या क्या दिया था आप लोगों ने? पापा जी ने बहुत कुछ दिया था, हद से ज्यादा दिया था, जैसे हर कोई बाप अपनी बेटी को देता है। सियाज गाड़ी दी थी, 20-21 तोला सोना दिया था, बाकी सब चीज दी थी जो होती है फर्नीचर वगैरह। 150 जोड़ी कपड़ा। हाँ जी। एंड वी हैव अंशुमन विद अस। अंशुमन जी, इसमें तो मीनाक्षी जो है निकी सिस्टर इन लॉ साफ साफ कह दिया कि मतलब जो टॉर्चर होती थी निक्की को, वही टॉर्चर उन्हें भी दिया गया था निक्की की फैमिली की तरफ से। जी बिल्कुल, ये बड़ा अब क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि कहते हैं इसमें एक के बाद एक नए सामने चीजें सामने आ रही हैं। अब इसमें मीनाक्षी जो निक्की की भाभी है वो मीडिया के सामने आई है। उनका कहना है कि पिछले 9 साल से मेरे को अपने मैके में छोड़ रखा है इनका जो हस्बैंड है राहुल, उसने, और कहीं ना कहीं ये भी प्रताड़ित थी अपने परिवार ससुराल पक्ष की तरफ से। तो अब वो खुद सामने आकर इंसाफ मांग रही है। उसका कहना है कि जब मेरे साथ मारपीट आई होती थी तो निक्की और निक्की की पूरी फैमिली और उनका जो हस्बैंड है राहुल, वो भी उसमें इन्वॉल्व होता था। और दहेज के लिए जब शादी 9 साल पहले हुई थी तब करीब 35 लाख रुपए का दहेज दिया, नगद दिया गया, गाड़ी और फ्रिज, जो रिक्वायरमेंट चीजें होती हैं एक फैमिली के लिए, वो सारी चीजें दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी उसको प्रेशराइज किया जाता था, डायरी के लिए उसको प्रेशर दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं अब निक्की के परिवार वालों की भी पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर अगर पुलिस दोनों 3 पहलुओं पर जांच करनी चाहिए। एक तो निक्की के मर्डर की जांच होनी चाहिए और जितिन की भाटी जो उसका हस्बैंड था उसकी कॉल डिटेल्स निकालनी चाहिए कि वो कितने लोगों को, लड़कियों के साथ अफेयर में रहता था। तीसरा, अब क्योंकि निक्की की भाभी सामने आई है तो इस पर भी जांच होनी चाहिए कि निक्की के फैमिली के लोगों ने किस तरीके से उसके साथ, मीनाक्षी के साथ भी गलत हरकत की थी। दहेज को लेकर उसको परेशान किया करते थे, मारपीट किया करते थे और पिछले 9 साल से वो अपने मैके में बैठी हुई है और आज भी एक इंसाफ की राह देख रही है। और इसीलिए शायद वो अब मीडिया के सामने आकर अपना दर्द बयां कर रही है और कहीं ना कहीं उसे आशा है कि अब शायद उसको इंसाफ मिलेगा।